Dear students, a pleasant morning to you. We wish a good health and well-being of you all in this odd times of pandemic COVID-19. In this critical situation, we all family of St. Jude's are consistently ready to hold the hands of our students who are at home with their parents. We are using a unique online system of education to teach and complete development of our lovely students. My dear students, please cooperate us and ensure that you must join the live classes and use all materials which we have prepared for you with our hard work. The most important manner is that now your weekly test is about to go. You all are preparing for this test. My best wishes with you to get best score in the test. Now in this video, you learn some MCQ, some multiple choice questions come from number system in your test. Now, in number systems, if you are asked, question first, every rational number is natural number or integer or real number or whole number. What will you say? What will you reply? You reply, because since real numbers are the combination of rational and irrational, hence every rational number is a real number and your correct answer is C. Okay, now let us take question 2. Between two rational numbers, how many rational numbers between two rational numbers? Your answers, there is infinitely many rational numbers. Okay, hence here your answer also C. Okay, next let us take question 3. Decimal representation of rational number. This cannot be terminating, non-terminating, or non-terminating repeating, non-terminating non-repeating. रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन क्या नहीं हो सकता है? यहाँ पर आपको नथिंग का क्वेश्चन है कि डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए रेशनल नंबर कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है? ये नहीं कि जो हो सकता है उसी में आप आंसर लिख दीजिए, तो क्या नहीं हो सकता है? तो जो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन है उसका आंसर आप लिख देंगे। और रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। Hence your answer is non-terminating and non-repeating. It means decimal expansion of a rational number cannot be non-terminating, non-repeating. Okay, now let us take question 4. The product of any two irrational number. इसके बारे में आपको पीछे क्लास में प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर शुरू के पीरियड भी बताए थे कि टू इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, इट मीन्स इफ यू मल्टीप्लाई एन इरेशनल नंबर विथ अनदर रेशनल नंबर, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट? यदि आप एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? इसमें आपको बताए थे इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई विथ इरेशनल नंबर आइदर रेशनल और इरेशनल, इट मीन्स समटाइम रेशनल और समटाइम इरेशनल. Hence your answer will be D, sometimes rational, sometimes irrational. Okay, here now take next question. The decimal expansion of the number √2. √2 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? आपको सबसे पहले जानना होगा नेचर ऑफ √2. √2 रेशनल है या इरेशनल है? तो √2 आप जानते हैं √2 इज एन इरेशनल नंबर. जब
आप जान गए रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, देन व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर? Decimal expansor of irrational number is non-terminating, non-recurring. It means the decimal expansion of the number root 2 is non-terminating and non-recurring. Okay. Now take next question. Which of the following is irrational? Here you are given 4 questions, 4 numbers. First, root 4 by root 9. तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, और ये स्क्वायर रूट अंडर है, तो 4 का 2 हो जाएगा, और 9 का जो है स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, तो रूट 4 बाई 9 का आ जाएगा 2/3. इट मीन्स रूट 4 बाई 9 का आप गेट करेंगे 2/3, तो ये रेशनल हो गया. अब रूट 12 बाई रूट 3, रूट 12 का आप 2 रूट 3 गेट करेंगे, 4 3 जा 12, 4 का 2 और रूट 3 बाय रूट 3, रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और आप गेट करते हैं 2. ये भी आपको है क्या है, रेशनल नंबर है. रूट 81 इक्वल टू क्या हुआ 9, ये भी रेशनल है. अब उसके बाद रूट 7 पे आते हैं, रूट 7 क्या है, इरेशनल नंबर है. हेंस योर आंसर शुड बी नंबर सी, रूट 7. ओके. नाउ लेट अस नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is irrational? Here all questions in the form of decimal expansor. Now you learn decimal expansor of real number, terminating, non-terminating, repeating and non-terminating, non-repeating. तो आप जान रहे हैं कि इसमें इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर का क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होता है. तो इसमें क्या है देखिए 0.14 ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग कर रहा है, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा. 0.1416 पर रेकरिंग है, तो ये 16 यहाँ पर रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग साथ रिपीटिंग है, ये भी आपको इरेशनल हो जाएगा. अब देखिए 0.1416 है, यहाँ पर जो है 4 डिजिट रिपीट कर रहा है, रिपीट तो कर रहा है 0.1416, तो ये भी आपको जो है रेशनल नंबर होगा. हाँ, डी नंबर में हम लोग क्या देखते हैं, ये एक सीरीज का नंबर है, आगे क्या आ सकता है इसको आप देख सकते हैं. 0.401, 4001, 4001, 4401, ये डॉट डॉट करके आप इस ढंग से ये कह सकते हैं. डी जो है आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग है, और इस लेकर जो है इरेशनल नंबर आपको जो है 0.6. क्वेश्चन नंबर आपका डी आंसर होना चाहिए. ओके. नाउ लेट अस नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन एक, ए रेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3. रूट 2 और रूट 3 के बीच का इरेशनल नंबर आपको फाइंड करने के लिए कहा जाता है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे. एक क्वेश्चन है रूट 2 प्लस रूट 3/2, दूसरा है रूट 2 इंटू रूट 3/2, तीसरा थर्ड है 1.5, डी नंबर है आपको 1.8. अब ये बताइए, तो ये रेशनल नंबर चाहिए. रूट 2 है इरेशनल, रूट 3 है इरेशनल, रूट 2 और रूट 3 दोनों इरेशनल है, लेकिन इसके बीच में आपको क्या फाइंड करना है, रेशनल नंबर को फाइंड करना है. तो इसमें देखेंगे कौन कौन सा जो है. अब देखिए जो 1.414 ये रूट 2 का वैल्यू होता है, और रूट 3 का 1.732 लेंगे, तो रूट 2 प्लस रूट 3/2 ये जो आपको आएगा, इसका सोल्यूशन इरेशनल नंबर के फॉर्म में आ जाएगा. ए नंबर भी इरेशनल नंबर में आ जाएगा, बी में भी आपको इरेशनल नंबर आ जाएगा, और उसके बाद जो है सी में जाकर देखते हैं, तो सी में 1.5 है, ये रेशनल है, और डी में 1.8 ये रेशनल है. तो अब ये चलेंगे, रूट 2 का वैल्यू 1.4 है, 1.4, और रूट 3 का वैल्यू क्या है 1.7 है. 1.4 और 1.7 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 1.5. एकदम एब्सोल्युटली यू आर राइट. 1.5 is between 1.4 and 1.7. Hence, a rational number between root 2 and root 3 is 1.5, not 1.8. 1.8 comes after 1.7. Hence, here root 2 और root 3 के बीच में अगर कोई एक रेशनल नंबर कहा जाता है तो वह 1.5 आएगा. ओके. Let us take next question. The value of 1.999 in the form of क्या आएगा,
आपको ख्याल है आपके एक्सरसाइज में दिया गया था 0.9 पर एक रिंग, 0.999 करने पर क्या था आंसर उसका 1 आ जाता था। उसी ढंग से 1.999 रेकरिंग करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1 and 9/9 इट मीन्स 1 + 1 = 2 आंसर आएगा। ओके, तो ये आप देखिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 2√3 + √3। देखिए 2√3 + √3, यहाँ पर √3 को मान लीजिए एक आम, मतलब 2 आम प्लस 1 आम बराबर कितना आम, इजी वे में कहिएगा 3 आम। इसका मतलब 2√3 + 1√3 = 3√3। इजी वे में आप कह सकते हैं 3√3, जनरल रूप में इसे कह सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में क्या कहा जाता है, देखिए 2√10 × √15 इज इक्वल टू, तो √10 × √15 ये आपको कहा जा रहा है निकालने के लिए। तो देखिए क्या निकालिएगा आप √2 और हाँ, अब देखिए ये जो करेंगे आप मल्टीप्लाई, तो 10 × 15 कर देंगे। 10 × 15 करने के बाद क्या होगा, 10 × 15 में आप जो है कहाँ, तो 10 × 15 तो यहाँ पे आप जो है 10 × 15 में ले आइएगा, तो 150, और 150 को आप फैक्टराइज कीजिएगा तो 25 6 जा 150 होता है। 25 का तो √5 ले आइएगा, और इधर बच जाएगा आपको 16, तो हो जाएगा क्या आपको 5√16। ओके ना, ये इस 5√16 के बाद आप लेने के बाद ये क्या करते हैं आप, ये चलिए आपको थोड़ा सा चलते हैं हम लोग। अब जो है इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये देख लिया आसानी से। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जाता है, द नंबर ऑफ 10 और रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7 - √2। इसको आप रेशनलाइज करेंगे, कौन सा नंबर आप गेट करेंगे, तो ये बताइए √7 - 2 है डिनोमिनेटर में, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √7 + 2 से। √7 + 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे में तो हो जाएगा √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, 7 - 4 3, नीचे में आ जाएगा 3, ऊपर में आ जाएगा √7 + √2। ये फर्स्ट आंसर आपको दिया हुआ है, यही आपको हो गया √7 + √2 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, इस ढंग से आप जो है ये कर सकते हैं। इस ढंग से आप जो है इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आपको क्या आ जाएगा √7 + 2/3। ये ए नंबर क्वेश्चन आपका होगा। ओके, इसी ढंग से फिर आपको पूछा जाएगा 1/√9 - √8 क्या होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये क्या है, √9 का वैल्यू 3 हो जाएगा, यहाँ देखिए √9 - √8, √9 का वैल्यू आपको लिया गया है 3, और 8 √8 का हो जाएगा 2√2, ये मतलब 1/3 - 2√2 आ गया। तो इस ढंग से आप क्या करते हैं, आप 3 में √2 करके आप ये ले आते हैं। ओके, तो इस ढंग से आप जो है √9/√8 है, तो √9/√8 को आप पहले 3 - 2√2 में कन्वर्ट कर लिए, ऊपर नीचे 3 + 2√2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या पाते हैं, नीचे में तो 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8 आ जाएगा, 9 - 8, और ऊपर में क्या बचेगा 3 + 2√2, और आपका आंसर क्या आना चाहिए 3 + 2√2। डी नंबर जो आपका आंसर है यही होगा 3 + 2√2। ओके, now let us take क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 14। यहाँ है 7/3√3 - 2√2। तो इसमें क्या कहता है आपको, ये रेशनलाइज करने के बाद इसका डिनोमिनेटर आप क्या पाइएगा। यहाँ देखिए फिर 7/3√3 - 2√2 है, तो ये जो है 3 - 2√2 को ये 3√3 + 2√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या पाइएगा 7 × जो है आपको इस ढंग से 7 और
इन ब्रैकेट 3√3 प्लस 2√2 बाय 27 माइनस 8, 27 माइनस 8, 27 माइनस 8 कितना आएगा 19, और योर आंसर बिकम 7 इंटू 3√3 प्लस √2 बाई 19, और ये आंसर आपका किस नंबर में है, तो ये देखिए आपका जो इसका आंसर जो होगा। हाँ, तो क्या कहता है पूछता है केवल वी गेट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या आया आपको 27 माइनस 8 19, तो आपका आंसर बी नंबर हो गया 19 आंसर, जो इसमें डिनोमिनेटर केवल पूछ रहा है क्या होगा। इसी ढंग से हम क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर चलेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 पर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में है √32 प्लस √48 बाय √8 प्लस √12, ये आसान है। 32 मीन्स 16 इंटू 2, ये आ जाएगा आपको। तो ऐसे क्या करेंगे, पहले वैल्यू 4, ये फर्स्ट का आ जाएगा 4√2 प्लस 4√3 आएगा, नीचे में आपको 2√2 प्लस 2√3 आएगा। ऊपर में अगर 4 कॉमन लेते हैं तो √2 प्लस √3, नीचे में 2 कॉमन लेते हैं तो √2 प्लस √3, और √2 प्लस 3 √3 ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 जा 4, आंसर आपको 2 आ गया। अब उसके बाद का क्वेश्चन आता है √2 का वैल्यू, मैंने क्वेश्चन में आपको दिया गया हुआ है √2 का वैल्यू 1.4142 दिया हुआ है, तो कहता है स्क्वायर रूट अंडर √2 माइनस 1 बाय √2 प्लस 1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइज करने से क्या होगा, आप पहले स्क्वायर रूट अंडर √2 माइनस 1 बाय √2 प्लस 1 है, ऊपर नीचे √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा आपको न्यूमरेटर में आ जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा 1, √2 माइनस 1 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा √2 माइनस 1। √2 माइनस 1 आंसर आने के बाद √2 का वैल्यू इनपुट कर देंगे 1.4142 माइनस 1, वह उसका आ जाएगा 0.4142। इस ढंग से इजी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी ढंग से देखते हैं 4th रूट अंडर क्यूबिक रूट अंडर 2 स्क्वायर, तो सबको एक के बार 4 3 जा 12, हाँ इस ढंग से आप ले सकते हैं। हाँ 4 3 इस ढंग से है, तो क्या करेंगे पार्ट बाय पार्ट हम लेते जाएंगे। हाँ, ये पहले आपको पार्ट बाय पार्ट करेंगे, 2/3 इंटू 1/4 करेंगे, ये आ जाएगा 2 को पावर 1/4। क्वेश्चन नंबर आपको 18 में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, ये आपको 3rd चैप्टर के अंतर्गत बताया है कि प्रोडक्ट करना है। देखिए क्यूबिक रूट अंडर 2 4th अंडर 2 इंटू 12 रूट अंडर 32, तो क्या करेंगे सबका हम लोग एलसीएम 3 4 12 का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा। अब सबको √12 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, √12 में ले आएंगे, लाइक आपको एक जैसा लाइक एंथ को कर लेंगे, तो आ जाएगा 12 2 अंडर 4 12 2 और 12 सबका 2 आ जाएगा, जोड़ देंगे क्या आएगा 4 3 7 बाई 12 12 रूट अंडर 2 पावर 12, और 12 12 कैंसिल हो जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा 2। ओके, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। वैल्यू ऑफ 4 रूट अंडर 81 पावर -2, ठीक है, -2 का वैल्यू कैसे निकालिएगा, पहले 1/81 कर लीजिएगा, 1/81 का क्या हो जाएगा, उसके बाद जो है 1/81 4th है। अब जो है पावर 81 पर ये आ जाएगा, हाँ 81 पर पावर 2, ये 4 आ जाएगा, 81 पावर 2/4, और ढंग से आंसर क्या आ जाएगा आपको 1/9 आ जाएगा। आसानी वे में इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए 256 तो पावर 0.16 और इंटू 256 पावर 0.09, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, दोनों को ऐड करेंगे 0.25 आएगा। 0.25 का मतलब क्या होता है 1/4, 25/100 करेंगे 1/4, और 1/4 करेंगे 256 पे, क्या निकलेगा आंसर 4, 4 को पावर 4 इंटू 1/4 करके आप 4 को गेट करेंगे। इसी ढंग से आपको जो है इसमें पूछा जाएगा, बताइए कौन सा जो है एक्स का वैल्यू क्या आएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको है ना इक्वल टू एक्स पावर 12/7 -5/7 इक्वल टू आएगा, दोनों को माइनस करेंगे 12 माइनस 5/7/7। फर्स्ट का आंसर आपको क्या आएगा, फर्स्ट का आंसर आपको 12 आप पावर माइनस करेंगे तो कॉमन लेंगे, यहाँ ये नहीं है बतलाए थे ना, डिवीजन रहेगा x पावर 12/7 और डिवाइडेड बाय x पावर 5/7 रहेगा,
तब आप लोग पावर में माइनस कीजिएगा। यहाँ आपको कन्फ्यूज करने के लिए क्या किया है, आपको दे दिया है क्या, देखिए डिवीजन के बदले में इन प्लेस ऑफ डिवीजन माइनस साइन इज गिवन, माइनस साइन इज गिवन। आपको डिवीजन के साइन के बदले माइनस का, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है। क्या करना है आपको, आप जो है यहाँ पर ये नहीं होगा एक्स, और सिंपली वे में यहाँ पर जो है देखिए सर्ड्स के फॉर्म में है। हाँ, यहाँ पर आपको जो है 12 और यहाँ पर करेंगे, देख लेंगे 4 1/3 है, तो यहाँ पर करके देखते हैं क्या आता है। ये भी आपको यहाँ पर भी प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर भी करने में आपको ये प्रॉब्लम होता है। इस ढंग से आपको जो है सपोज दैट आप ये कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा। देखिए अब जो है यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, तो ईच क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन जो आपको दिया हुआ है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर हमको 21 में आपको देखिए यहाँ पर 12 यहाँ पर डिवीजन का बदला माइनस का साइन दिया है यहाँ पर नहीं होगा। फिर जो है हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है देखिए पार्ट बाय पार्ट, x पावर 12/7 माइनस 5/7, ये अगर यदि आपको रहता क्या, यहाँ पर रहता ये डिवीजन, इसके बदले में डिवीजन का साइन रहता तब यूज होता, ये तो नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में जो है ये आपको है 4 पावर 1/3 है। नेक्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, नेक्स्ट का सॉल्यूशन लेकर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट का सॉल्यूशन देखिए आपको दिया हुआ है 4 1/3, तो ये हो जाता है क्या आपको, देखिए तो x का वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 4/3, 4/3 इंटू 1/12 हो जाएगा। 4/3 इंटू 1/12 करेंगे तो देखिए यहाँ भी आपको जो 4/3 1/12 ये भी आपको नहीं आता है। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 इंटू 1/3 4/3, और 12 रूट अंडर है तो इंटू 12 करेंगे तो 4 से 3 मल्टीप्लाई कट जाएगा, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा क्या, यहाँ है x टू पावर 1/9। यहाँ भी आपको x नहीं आया। अब जो है उसके बाद क्या करना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने के बाद देखिए आपको क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट में आपको थोड़ा सा ऊपर ये आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आपको है देखिए रूट अंडर x², हाँ, का होल पावर 2/3। तो यहाँ पर जो है आप कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है 2/3 इंटू 3/2 करेंगे। इस सॉल्यूशन में आने के बाद आपको देखिए ये इक्वल टू x मात्र आएगा और बाकी कहीं x नहीं है। यहाँ भी नोट x आया, केवल ये क्वेश्चन सी नंबर में आप जो है सॉल्यूशन निकालने के बाद x आया, इसलिए योर आंसर इज सी। ठीक है, ओके। आज इतना ही एमसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए, फिर नेक्स्ट टाइम अदर क्वेश्चन पर करेंगे। और आप लोग जो है होप दैट यू विल बी प्रिपेयर बेस्ट इन वीकली टेस्ट। ओके।